Okay, so we've already completed this part and theory examples also. So now let us take few MCQs. These are the Nirali MCQ जो sheet मैंने already आपसे share की, ठीक है? And already these MCQs are solved. Okay, I will just explain quickly. But before that, let me just quickly revise our topic. Yes. So yeah. So bolo. What is binomial distribution? What is binomial distribution? Yes, binomial probability distribution. What is the formula? The probability of getting R success. Have you read this part? Probability of getting R success. Yes, what is the formula? Is equal to what? What is P of R? Probability of getting R success in binomial probability distribution. What is the formula? NCR. NCR. P raised to R. P raised to R, Q raised to N minus R. Very good. Okay. ठीक है, this is your formula. Okay, now let us discuss some examples, some MCQs on this. So first question is, an unbiased coin is thrown 5 times. Okay, तो आप एक्सपेरिमेंट कितने बार रिपीट कर रहे हो? आप एक्सपेरिमेंट कितने बार रिपीट कर रहे हो? 5 टाइम्स. Therefore n is equal to 5. Okay, probability of getting 3 head है ना, 3 एक काउंट है, बट व्हाट इज द सक्सेस? सक्सेस मतलब जो कैलकुलेट करना है दैट बिकम अ सक्सेस. तो व्हाट इज योर सक्सेस? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज योर सक्सेस. So probability of getting head is equal to 1/2. That we know when we toss any coin, the probability of getting head is always 1/2. That implies Q is equal to 1 minus 1/2. That is 1/2. ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ रहा है. ओके, और आपको कैलकुलेट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, है ना. सो P of R equal to 3, है ना. P of R equal to 3. यूज द फॉर्मूला NCR P raised to R Q raised to N minus R. P की वैल्यू 1/2 है, Q की वैल्यू 1/2 है, N की वैल्यू क्या है? 5 है, R की वैल्यू क्या है? 3. जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज. ओके, डू दिस कैलकुलेशन ऑन कैलकुलेटर. ये आपको क्विकली आना चाहिए कैलसी में भी, ठीक है. सो दैट गिव्स यू 5/16. ओके, सो योर आंसर इज 5/16. ऐसे आपको इजी क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है. याद रखो, टॉसिंग अ कॉइन इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज आते हैं. नेक्स्ट, 20% bolts produced by machine are defective. Okay, so what is the probability of getting defective bolt? What is the probability of getting defective bolt? 20% means 20/100 means 0.2. So what is Q? Q is equal to 1 minus P, that is nothing but 1 minus 0.2, and which is equal to 0.8. Correct. Next read करते हैं. The probability that out of 3 bolts means n is equal to 3. आप क्या करने वाले हो? We have to take 3 bolts. Okay, and out of 3 bolt chosen at random, 1 is defective. Okay, आपको क्या करना है? find a probability that out of 3 bolts 1 is defective. So when we choose 3 bolt, okay, we have to find a probability of 1 bolt to be defective, है ना. So n equal to 3 में से 1 डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है. सो P of R इज इक्वल टू 1, विच इज अगेन NCR P raised to R Q raised to N minus R. N is 3, R is 1, P is 0.2, Q is 0.8. Just put this value in calculator, you will get that answer as 0.384. समझ में आ रहे क्वेश्चंस? यस और नो? सिंपल है. आपको बस उस क्वेश्चन से क्या चाहिए? स्मॉल p की वैल्यू, n की वैल्यू, r की वैल्यू. This we need for binomial distribution. Okay, Q तो आपको मिल जाता है because Q is equal to 1 minus P. Next, the probability that a person hit a target in shooting practice is 0.3. So probability of hitting a target is 0.3. P is equal to 0.3. Therefore Q is equal to 0.7, not hitting the target. Next क्या है? If he shoot 10 times, so n is equal to 10, the probability that he hits the target
हिट्स द टारगेट इज। यस, कैसे करोगे अभी आप बोल, ऑलरेडी आंसर है वहाँ पे, बट आपका क्या थॉट है इस पे? क्या एक्सपेरिमेंट आपको टारगेट को हिट करना है, ठीक है? एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 10 टाइम्स। ओके, 10 टाइम्स आप टारगेट को हिट करने वाले हो। ओके, कुछ केसेस में हिट होगा, कुछ केस में हिट नहीं होगा, बट आपको क्या कैलकुलेट करनी है? फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट दैट पर्सन विल हिट द टारगेट। पहले मुझे ये बोलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन विल हिट द टारगेट? हिट द टारगेट, टारगेट हिट कौन कौन से केस में होगा? अगर आप 10 टाइम्स शूट करते हो, तो कौन कौन से केस में टारगेट हिट होगा? फॉर विच वैल्यूज ऑफ आर दैट पर्सन विल हिट द टारगेट? greater than equal to 10 or less than equal to 10. R is equal to 1 2 3 4 5 10. हाँ, क्योंकि अगर आप R इक्वल टू 1 लेते हो तो इसका मीनिंग क्या आता है? 10 टाइम्स अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें से एक बार उसने हिट किया, एक बार भी अगर वो हिट करता है तो दैट पर्सन हिट द टारगेट। उन्होंने इन जनरली बोला है ना, 10 टाइम्स आप शूट करो, अगर एक बार भी हिट होता है, अगर एक बार भी टारगेट हिट होता है तो दैट कंसिडर अंडर हिटिंग द टारगेट। तो एक बार हिट करता है वो भी चलेगा, ओके, 2 टाइम्स हिट करता है वो भी चलेगा, 3 टाइम्स हिट करता है वो भी चलेगा, अप टू 10 टाइम्स हिट करता है तो भी चलेगा। ओके, कौन सा पार्ट नहीं चलेगा? R इज इक्वल टू 0, क्योंकि R इक्वल टू 0 का डायरेक्ट मीनिंग क्या आता है? दैट पर्सन विल नॉट हिट द टारगेट। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? P ऑफ R इज इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ R इक्वल टू 2 प्लस P ऑफ R इक्वल टू 3 प्लस P ऑफ R इक्वल टू 4 अप टू व्हाट? सो बेसिकली आपको कैलकुलेट क्या करना है? P ऑफ R ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यस, करेक्ट है, क्योंकि इन सारे केसेस में वो टारगेट हिट हो रहा है। 1 टाइम हिट हो रहा है, 2 टाइम्स हिट हो रहा है, 3 टाइम्स हिट हो रहा है, बट टारगेट हिट हो रहा है। ठीक है, सो बेसिकली आपको कैलकुलेट क्या करना है? P ऑफ R ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बट अगर आप ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो तो आपको 10 टाइम्स कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये क्या है? P ऑफ R इक्वल टू 1, R इक्वल टू 2, ये कहाँ तक करना होगा? अप टू P ऑफ R इज इक्वल टू 10, क्योंकि 10 टाइम्स आप हिट करने वाले हो या टारगेट को शूट करने वाले हो। बट इतना कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट है, तो आप एक रिजल्ट यूज कर सकते हो। कौन सा वो रिजल्ट है? सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1। तो अभी इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी मिसिंग है? 0 की। R इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी मिसिंग है, तो 1 माइनस करके वो लिखो, है ना? एज P ऑफ R इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ R इक्वल टू 1, उन सब की एडिशन 1 आती है, तो P ऑफ R से अगर आप जाते तो वो क्या होगा? 1 माइनस P ऑफ R इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है सबको? इज दिस क्लियर और नॉट? नहीं समझ में आ रहा तो ना बोलो डायरेक्टली। इज दिस क्लियर? 1 माइनस P ऑफ R इक्वल टू 0 मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन विल नॉट हिट द टारगेट। इसका अगर आप कॉन्वर्स लेते हो या इसका अगर आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेते हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन विल नॉट हिट द टारगेट, इसका अगर आप कॉन्वर्स लेते हो तो वो क्या आने वाला है? 1 माइनस P ऑफ R इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन विल हिट द टारगेट। मैंने कैसे कैलकुलेट किया है? मैंने नॉट हिट द टारगेट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है, फिर उसको रिवर्स करके मुझे क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन विल हिट द टारगेट। इज दिस क्लियर और नॉट? Yes, sir. हाँ, ये ऐसे ही ट्विस्टेड क्वेश्चन है सारे। Okay, and then just calculate for P of R equal to 0. Everything is there. P is there. Q is there. Okay, and just do this calculation on calculator. ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको समझ में, मतलब क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि करना क्या है कैलकुलेट। ओके, हमेशा जो गिवन है उस हिसाब से आप नहीं जा सकते हो, कभी कभी आपको उसका रिवर्स पार्ट लेके कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे ही देखो ना, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन विल हिट द टारगेट, अगर वो कैलकुलेट करने की आप कोशिश करते हो ना, तो वो P ऑफ R इक्वल टू 1, ये अराउंड 10 टाइम्स आपको वो कैलकुलेशन करना होगा। इसलिए मैंने क्या किया है? नॉट हिट द टारगेट मतलब P ऑफ R इक्वल टू 0, ये मैं कैलकुलेट करूंगा, और फिर इसका कॉन्वर्स लेके, इसका कॉन्वर्स होता है 1 माइनस, प्रोबेबिलिटी में कॉन्वर्स आता है 1 माइनस दैट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो दैट गिव्स मी प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन विल हिट द टारगेट। इसका काउंटर पॉजिटिव आप ऐसे भी बोल सकते हो। कैसे? आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड। ओके, नेक्स्ट, एन अनबाइज्ड कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, n इक्वल टू 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग हेड इज योर प्रोबेबिलिटी, सो P इज इक्वल टू 1/2, Q इज इक्वल टू 1/2। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है?
आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1, एक तो आना ही चाहिए, एक भी आ सकता है, ओके, यू विल गेट 2, यू विल गेट 3, यू विल गेट 4, यू विल गेट 5, बट इतने सारे कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो जो मिसिंग है वो 1 से सबट्रैक्ट करो, तो जो मिसिंग है वो 1 से सबट्रैक्ट करो, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस पी ऑफ आर इक्वल टू 0, एंड जस्ट डू दिस कैलकुलेशन यूजिंग बाइनोमियल फॉर्मूला, NCR P raised to R Q raised to N minus R, you can use this formula to complete this, ठीक है। तो अभी मैंने डायरेक्ट किया यहाँ पे R इक्वल टू 0 पे, अब देखो R इक्वल टू 0 की वजह से ये सारा 1 आ जाएगा, बस आपको Q raised to N minus R लिखना है, ओके। समझ में आ रही है क्वेश्चंस? आर यू गेटिंग दिस पार्ट नाउ? हाउ आई रिप्लेस P ऑफ R ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस P ऑफ R इक्वल टू 0, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि 1 के आगे अगर आप सारे वैल्यूज कंसिडर करते हो तो वो कैलकुलेशन ज़्यादा आता है, इसलिए जो मिसिंग है वो 1 से सबट्रैक्ट करो, ओके। A box contain 100 bulbs out of which 10 are defective. So what is the probability of defective bulb 10 by 100? That is 0.1. So Q is equal to 0.9. हो गया, पहले स्टेटमेंट का इतना कैलकुलेशन आता है। A sample of 5 bulb is drawn, so n is equal to 5. The probability that none is defective means R equal to 0. None is defective, so R equal to 0. So R equal to 0 is nothing but, या आप कैलकुलेट करो या मैं आपको डायरेक्टली बाइनोमियल में ये होता है P ऑफ R इक्वल टू 0 का आंसर डायरेक्टली आता है Q रेज टू N। कैसे? बिकॉज इन जनरल P ऑफ R इज इक्वल टू NCR P रेज टू R Q रेज टू N माइनस R, बट व्हेन वी पुट R इज इक्वल टू 0, NC0 इज 1, P रेज टू 0 इज 1, Q रेज टू N minus 0 is just a N. So in general it is just Q raised to N. So that also you can remember. So it is 0.9 raised to 5. That saves your time. Next, on an average a packet containing 10 blade, ये already हमने cover किया है, okay? On an average a packet containing 10 blade is likely to have 2 defective blades. मतलब इसका मीनिंग क्या है? From 10 blades 2 are always defective. So what is the probability of defective blade? 2 by 10 means 0.2. Hence Q is equal to 0.8, okay? ऐसे आपको कितने, this is one box, this is only for a one box, okay? है ना, एक बॉक्स में 10 ब्लेड्स आते हैं, one box contain 10 blades and what is the probability of getting defective blade is 0.2, है ना। ऐसे आपको 100 पैकेट कंसिडर करने, ओके, एंड क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड दी नंबर ऑफ पैकेट्स एक्सपेक्टेड टू कंटेन लेस दैन 2 डिफेक्टिव। तो पहले आप क्या करो, find a probability of less than 2 defective blade, less than है, strictly less than है, so probability of less than 2 defective blade, okay? What are the possible values? Less than 2 only 0 and 1. What are the possible values? Less than 2 only 0 and 1. So calculate P of R equal to 0, P of R equal to 1, all the values are here. एक पैकेट में 10 ब्लेड है तो n is equal to 10, क्योंकि आप ये बस एक सिंगल पैकेट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, हाँ। नेक्स्ट इज so probability of less than 2 defective blade is this, तो ये हो गया आपका एक पैकेट के लिए, है ना। probability of less than 2 defective blade is 0.375, बट ऐसे आपके पास 100 पैकेट्स है, so just multiply with 100, that gives the count of number of packets which having less than 2 defective blades, so 37.5 is nothing but 38. Is this clear? Any doubt in question 11? Reply, please reply me. Any doubt in question 11? No. Huh? Okay. Next, out of 2000 families with 4 children each, the number of families you would expect to have no girl is, okay, so the probability आपको क्या कैलकुलेट करनी है? The number of families, okay, तो काउंट कैलकुलेट करना, number of families you would expect to have no girl, okay. यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है दैट probability of having a boy is 1 by 2, okay, probability of having a girl is again 1 by 2, okay. So P सक्सेस आपका क्या है? probability of having a boy is your success, तो सारा कैलकुलेशन इससे ही रिलेट होना चाहिए, सारा कैलकुलेशन आपका, मतलब what is P of R, what is P of R? probability of getting R boys, okay, like that, okay, आप ऐसे इसको ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। सो जस्ट 1 मिनट, हाँ।
So remember, this P is related with boy only and this Q is related with girl. Okay. So आपको कैलकुलेट क्या करना है? So for one family, है ना, out of 2000 families with 4 children each, है ना, तो अगर आप एक फैमिली लेते हो, so for one family how many children are there? There are 4 children. So n is equal to 4. So 4 children में से, okay, so from this n is equal to 4, I want a probability of for no girl. So why I take r is equal to 4? That is my question. बोलो why I take, okay, मुझे r equal to 4 और मुझे कैलकुलेट क्या करना था? For no girl. Can anyone explain me this? फिर नो गर्ल का करना था तो इससे अच्छा हमने सारे बॉयज को कर दिया। Correct. If you want to find probability for no girl, it means all 4 must be boys. Okay, all 4 must be boys. और आपको मैंने पहले ही क्लियर किया था, ये जो r होता है, ये r आपका p के करस्पॉन्डिंग होता है. This is not a, this r is not the count of q. ठीक है, q is related with girl, q is related with girl. तो अगर हाँ, और p is related with boy, so r is equal to, मतलब आप कितने boys का नंबर सेट कर सकते हो so that you will get no girl. So you have to set r is equal to 4. 4 ही चिल्ड्रन है, 4 ही चिल्ड्रन है वहाँ पे उस फैमिली में. अगर चारों बॉयज आते सो देयर विल बी नो गर्ल. ओके, दिस इज द लॉजिक. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर नो गर्ल फॉर वन फैमिली, this all calculation is only for one family which having 4 children. So that probability is 0.0625, but there are 2000 families. So if you multiply this probability with the 2000, you will get the number of families, okay, which having no girls, so there are total 125 families. ठीक है. नेक्स्ट, इन 100 सेट ऑफ 10 टॉसेस. ठीक है, सो 10 टॉसेस के 100 सेट है, तो ऐसा एक सेट कंसिडर करो. हमेशा पहले सिंगल केस में करना है, ऐसा एक सेट कंसिडर करो. एक सेट कंसिडर करते हो तो देर आर 10 टॉसेस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और आपको क्या करना है, द नंबर ऑफ केसेस यू एक्सपेक्ट 7 हेड एंड 3 टेल. ओके, अभी यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपका सक्सेस क्या है, क्योंकि यहाँ पे हेड भी आ रहे हैं और टेल भी आ रहे हैं. आपको क्या चाहिए, 10 टॉसेस में से, आपको क्या चाहिए, 10 टॉसेस में से 7 हेड एंड 3 टेल, 7 हेड एंड 3 टेल. इसकी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. So here we don't, here it is not given that what is your P and what is your Q. So let us take P as probability of getting head and Q as probability of getting tail. तो आपका सक्सेस रिलेट कर रहा है हेड से. ठीक है, सो अगर आपका सक्सेस हेड से रिलेट कर रहा है तो आपको R इक्वल टू क्या लेना होगा, हेड की वैल्यू कंसिडर करनी होगी. सो यू कांट टेक R इज इक्वल टू 3 इन दिस केस. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप वैसे वो यहाँ पे अभी दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही है, इसलिए इतना कुछ इफेक्ट नहीं करेगा. हाँ, बट जो मैंने एक्सप्लेन किया मैं उसी सीक्वेंस से जा रहा हूँ. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड अगर आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, सो विच इज इक्वल टू, क्योंकि इसका सिंपल मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड, तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके टेली रहेंगे. ठीक है, सो दैट इज 12. सो योर फाइनल आंसर इज 12. इसका सिंपल मीनिंग क्या, आपको इतना ही कैलकुलेट करना था, बिकॉज देर आर ओनली 10 टॉसेस. 10 टॉसेस में अगर मैं बोलता हूँ कि 7 हेड है तो ये ऑब्वियस था ना, अदर्स 3 आर टेल. तो ये बस कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, बट एक्चुअली आपको हेड से ही जाना था. ठीक है, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन. दिस इज फॉर आई थिंक ओनली 1 सेट. हाँ, दिस इज फॉर ओनली 1 सेट. एक सेट में जिसमें 10 टॉसेस है, वहाँ पे 7 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.117. अब देखो इसको रीड कैसे करना है. एक सेट है जिसमें 10 टॉसेस है, उन 10 टॉसेस में 7 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.117. ऐसे मुझे 100 सेट लेने, तो 100 मल्टीप्लाई बाय दिस, दैट गिव्स यू 12. इज दिस क्लियर? यस, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है. 20% bolts produced by machine are defective, so probability of defective bolt is 20 by 100. The mean and standard deviation, अभी ये
आपको मैंने एक्सप्लेन किया था और कॉर्नर पे भी मैंने दिया है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। और इसका एक रीज़न मैं आपको बाद में दे देता हूँ जब ये टॉपिक हो जाएगा ना। एक और टॉपिक इसमें हमने ऐड किया है विच इज़ द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ओके, सो वहाँ पे ये हो जाएगा कवर ऑलरेडी आपका मीन कैसे कैलकुलेट करना, एक्सपेक्टेड वैल्यू। आई थिंक ये पार्ट आपने लर्न किया होगा कहीं पे। सो इन दैट आल्सो आई विल कवर दिस फॉर्मूलेज एंड वो ऑलरेडी मैंने पीपीटी में ऐड भी किया है। इफ़ यू वांट यू कैन रेफर फ्रॉम दैट, और वैसे भी लास्ट में मैं एक बार ले लेता हूँ वो पार्ट। So in binomial probability distribution, your mean is NP, where N is the number of trials, P is the probability of success, your variance is NPQ, and your standard deviation is under root of NPQ. Remember these values. Okay, so probability is given 20% bolts are defective, that is 20 by 100, which is equal to 0.2. So Q is equal to 0.8 and 100. Okay, इन टोटल मतलब द काउंट इज गिवन विच इज n इक्वल टू 900। और क्या बोला है उन्होंने, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इन टोटल ऑफ 900 बोल्ट्स आर। तो आपको मीन कैलकुलेट करना है और आपको स्टैंडर्ड डिवीजन भी कैलकुलेट करना है। टोटल ऐसे कितने बोल्ट्स है, 900 बोल्ट्स है। तो मीन क्या होता है, एन पी। सो एन मतलब 0.2 मल्टीप्लाई बाय p मतलब 0.2 एंड n इज 900। सो 900 मल्टीप्लाई बाय 0.2 दैट इज 180 and standard deviation is under root of NPQ. So just take their product, n multiply by p multiply by q, then take their under root, that gives you 12. So your answer is 180 and 12, that is option A. Formula based question. This is interesting. The mean and variance of binomial probability distribution is given. So this is your mean and this is your variance. मीन का फॉर्मूला होता है एन पी, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एन पी क्यू। ओके, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एन की वैल्यू मिलेगी। कैसे आप देखो, एन पी इज गिवन 5/4, तो एन पी की वैल्यू यहाँ पे डालो 5/4, यू विल गेट क्यू। ओके, सो क्यू अगर मिल जाता है, लिखा है कुछ मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। और कैलकुलेट क्या करना है, ये इज गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल पी इज इक्वल टू probability of success in a single trial. Okay, what is Q from here? What is Q? 3/4. Huh? 3/4. 3/4. And then what is P? 1/4. 1 by Q, that is 1 minus 3/4. So what is the probability of success? 1/4, na? Correct? So that calculation is not there, but you can डू इट मैनुअली, ठीक है। सो क्यू अगर आपके पास आ रहा है तो पी कैलकुलेट करना इजी है, पी इज इक्वल टू 1/4 के प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ही कैलकुलेट करनी थी आपको यहाँ पे। और क्या है, ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन है। मीन एंड वेरिएंस आर गिवन, मीन इज 6, वेरिएंस इज 2, यहाँ से क्यू मिल जाता है, फिर पी मिल जाता है। सो पी इज 2/3, क्यू इज 1/3, ये हो गया, ये ऊपर ही हमने देखा है। आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सी अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो कितने वैल्यूज तक आर रन करेगा, उसके लिए आपको एन चाहिए। एन की वैल्यू क्या है इस केस में, एन पी इज 6 एंड पी इज 1 बाय क्या है, पी इज 2/3। सो व्हाट इज एन, 6/2/3, यस। व्हाट इज एन, 9 ना, 9. ओके। हाँ, तो P ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, आपको रन कहाँ तक करना होगा, 9 तक रन करना होगा। R इक्वल टू 2 प्लस R इक्वल टू 3, ऐसे आपको रन करना होगा अप टू 9। दैट इज डिफिकल्ट, इतने सारे वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1, वो रिजल्ट यूज करते हैं। तो जो मिसिंग है वो 1 से सबट्रैक्ट करो, जो मिसिंग वैल्यूज है वो 1 से सबट्रैक्ट करो। सो 1 माइनस P ऑफ R इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ R इक्वल टू 1। तो इसमें 2 ही कैलकुलेशन आते हैं, दैट सेव्स योर टाइम। इसमें अराउंड 8 कैलकुलेशन आने वाले थे, इसमें 2 ही कैलकुलेशन आते हैं, ठीक है। सो P ऑफ R इक्वल टू 0 का फॉर्मूला, P ऑफ R इक्वल टू 1 का फॉर्मूला, एवरीथिंग इज गिवन, Q इज गिवन। अभी आपका प्रॉब्लम होगा 9 भी हमने कैलकुलेट किया है, विच इज सॉरी आपका प्रॉब्लम होगा n भी हमने कैलकुलेट किया है, विच इज 9। सो एवरीथिंग इज हियर, जस्ट पुट द वैल्यूज, यू विल गेट दैट आंसर विच इज 0.99। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आने वाले हैं आपको, मे बी इन फाइनल एग्जाम, ठीक है। Next, if x follows the binomial probability distribution with the parameter n is equal to 6 and p is the probability of success,
9 टाइम्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, देन पी इज इक्वल टू, पी कैलकुलेट करना है आपको, n गिवन है और आपको एक कंडीशन गिवन है, इतना बस आपको पता चल गया। और दिस एवरीथिंग इज अंडर बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो 9 टाइम्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पता ही है, यानी 6। सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4, इसको आप r इक्वल टू 4 ट्रीट कर सकते हो, पी ऑफ r इक्वल टू 4, दैट इज नथिंग बट, सो 9 इंटू बायनोमियल का फॉर्मूला पता ही है, 6c4 p रेस टू 4 q रेस टू 4 माइनस 6 माइनस 4 विच इज 2। ये यहाँ पे मैं यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू r इज इक्वल टू एन सी आर p रेस टू r q रेस टू n माइनस r। सेम फॉर p ऑफ x इक्वल टू 2, एन सी आर p रेस टू r q रेस टू n माइनस r। Then you can cancel this, what you can cancel, p square cancel with this p square, q square cancel with this q square, है ना। So you will get on left hand side p square, on right hand side q square, ठीक है। ये आप कैल्शियम में कैलकुलेट करो, ये जो भी नंबर है ये भी कैल्शियम में कैलकुलेट करो जो भी आ रहा है। So you will get 135 p square equal to 15 into q square. After simplification it become 9 p square equal to q square, but we know the formula for q, which is 1 minus p. So 9p square is equal to 1 minus 9p square is equal to 1 minus p whole square, correct? So after simplification this is 1 minus 2p plus p square, correct है, the straightforward formula। फिर आपका after doing this simplification you will get a quadratic equation which is 8p square plus 2p minus 1 equal to 0, and from that you will get the values for p. So there are two values for p, one is 1 by 4 and second is minus 1 by 2, but okay, चेक कर सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों में से एक ही टिक करना है, what is the final conclusion, why what we have given, number of trials are given, okay, so I don't think so we can cancel any value, so इनमें से एक ही वैल्यू ऑप्शन में है तो आई थिंक उसकी वजह से ये टिक किया है, बट इज देयर एनी प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, हाँ ये -1/2 आ रहा है ना, ओके यस इट इज नेवर नेगेटिव, दैट इज ट्रू। हाँ 0 less than equal to p less than equal to 1. yes as it is a probability, it is a probability of success, so it lies between 0 and 1, so you can cancel this value and your final answer is p is equal to 1/4, okay, that is the only way, okay। what happen if I get here both positive, ऐसी केस नहीं आएगी, okay, अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर प्रॉब्लम आती, ठीक है, बट ये नेगेटिव तो इसलिए वो केस ही नहीं आ रही है, ठीक है। सो दिस द ओनली वे, तो उनमें से एक केस आपकी नेगेटिव ही आएगी अगर एक ही वैल्यू आप एक यूनिक वैल्यू ही रहेगी वहाँ पे, सो फॉर दैट ऐसा कुछ कॉन्ट्रडिक्शन वहाँ पे आ ही जाए, ठीक है, ओके। सो 1/4 इज योर फाइनल आंसर। और भी है क्या, if x follows binomial distribution with parameter n and p, see binomial probability distribution is a function that related with n and p, ठीक है। आपको अगर 12th में अगर आप देखते तो शायद ऐसा कुछ आप लिखते थे वहाँ पे, दिस इज द नोटेशन फॉर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन योर 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। सो p is given which is equal to 1/2, and again the same condition is there, p of x equal to 4 equal to p of x equal to 5, so use the formula of binomial probability distribution, okay, and you can cancel few values here, this 1/2 raised to n cancel with this 1/2 raised to n, and ये थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है मुझे, ठीक है, लेट मी गो विद 1 by 1, मतलब लेट अस डू दिस कैलकुलेशन। सो p of x equal to 4, तो आपके पास अभी एक ही इन्फॉर्मेशन है, दैट इज p equal to 1/2, एक ही वैल्यू आपके पास गिवन है, p equal to 1/2, ठीक है। और कंडीशन क्या है, p of x equal to 4, p of x equal to 4 इज n c r, r इज 4, 1/2 raised to 4, 1/2 raised to n minus 4, क्योंकि q की वैल्यू भी सेम ही आएगी, ओके। ये आई थिंक समझ में आ रहा है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ p of x equal to 4, p of x equal to 5 की ये डेफिनेशन है, n c 5, 1/2 raised to 5, 1/2 raised to n minus r मतलब 5। इसके आगे आप देखो, n c 4 में वैसे ही रख रहा हूँ,
NC5 में अभी भी ऐसे मतलब सेम ही रख रहा हूँ। और अभी यहाँ पे क्या कैलकुलेशन होगा, दिस 1/2⁴ कैंसिल विद दिस 1/2⁴, यहाँ पे 1/2 एक ही पार्ट रहेगा, एंड 1/2 n अगेन कैंसिल विद दिस 1/2 n, और ये आप सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हो। सो फाइनली इफ आई राइट हियर सेपरेटली, सॉरी हाँ ऑलरेडी नीचे किया है मैंने, ओके। सो दिस वन, हाँ तो यहाँ पे क्या रहेगा 1/2⁴ रहेगा, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 1/2⁴ अगर आप ये कैंसिल करते हो पहले, और फिर यहाँ पे एक 1/2 रहेगा। लेट मी डू इट, ओके, डोंट नो नीड टू डू एनी कंफ्यूजन हियर। सी फर्स्ट कैंसल दिस 1/4 विद दिस 1/2⁴, तो अभी यहाँ पे क्या रहने वाला है 1/2 इंटू 1/2⁻n−5, दैट इज नथिंग बट 1/2⁻n−4। अभी लेफ्ट साइड में भी क्या है 1/2⁻n−4, राइट साइड में भी क्या है 1/2⁻n−4, सो दिस कैंसिल विद दिस। तो बेसिकली अभी आपके पास क्या रहेगा NC4 इज इक्वल टू NC5। एनी डाउट इन दिस पार्ट? या अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ कैलकुलेशन। एनी डाउट अप टू दिस? सेपरेट करना है या यहीं पे एक्सप्लेन करो? बोलो, कुछ तो बोलो। ओके, लेट मी डू इट। नो रिप्लाई मीन्स यू आर नॉट गेटिंग दिस। ठीक है। So what is given? P is given. P is equal to 1/2. This is given. और आपको एक कंडीशन भी given है, P of x is equal to 4 is equal to P of x is equal to क्या है वो 5 ना, 5। एंड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना है P of x is equal to 2 आई गेस। ओके डन, ठीक है 2, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, आपको P गिवन है तो यहाँ से आप Q कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ 1 - 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके हाँ, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला आपको पता ही है बाइनोमियल का, NCR P⁻r Q⁻n−r। ये फॉर्मूला एज इट इज यहाँ पे फॉलो करो। सो व्हाट इज योर रिजल्ट? n वी डोंट नो, सो NC R की वैल्यू क्या है 4, P इज 1/2, सो 1/2⁻r, R इज 4, अगेन 1/2⁻n−4 इज इक्वल टू NC 5, 1/2⁵ and 1/2⁻n−5. What I will do first, I will cancel this with this. So NC4 1/2⁻n−4 is equal to NC5. यहाँ पे अभी 4 कैंसिल हो रहा है, एक 1/2 रहेगा, and into this 1/2⁻n−5, but this is nothing but NC5 1/2⁻n−4. So NC4 1/2⁻n−4. So this will get cancelled with this. So you will only have NC4 is equal to NC5. Is this clear now? Yes? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now what is the formula of NCR? What is the formula of NCR? N factorial upon R factorial into N minus R factorial. So N factorial upon R factorial is 4 factorial, N minus R factorial is equal to again N factorial upon 5 factorial into N minus 5 factorial. ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बस क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 4 है, हाँ ये भी कैंसिल होके यहाँ पे ओनली 5 रहने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं इतना पार्ट फिर से लिखता हूँ। सो आई थिंक यू विल गेट हियर n-4 factorial is equal to 1/5 into n-5 फैक्टोरियल। अब इनमें से कैसे कैंसिल करना है वो आपको मैं दिखाता हूँ प्रॉपर। ओके, मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट को ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n-5 फैक्टोरियल? n-5 into n-6 into n-7। क्या है? हाँ, आपको ये पता है ना 4 फैक्टोरियल आप कैसे लिखते हो?
हाउ यू राइट 4 फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अप टू 1, मतलब क्या करना है, इस नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करना है, कब तक करना है ये, जब तक 1 नहीं आता तब तक। तो मैं सेम करने वाला हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा, सॉरी पहले तो वही लिखना है ना, हाँ पहले n n - 5, नेक्स्ट इज n - 6 गुड, 1 सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए वो इंक्रीज होते जाएगा। नेक्स्ट इज n - 7, ये कब तक करना है, अंटिल यू गेट 1, ये 7 इंक्रीज होते जाएगा, n जैसे ही वो n इंटू n - 1 पे जाएगा यू विल गेट 1 हियर, ये होगी फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली टेल मी व्हाट इज n - 4 फैक्टोरियल, वही है ना, हाँ बोलो, n - 4, नेक्स्ट n - 5 n - 6, ये भी कंटिन्यू होते जाएगा अप टू 1। नाउ इन दोनों में से क्या कैंसिल हो जाएगा, n - 4, ओके, एंड n - 5 फैक्टर में से आप देखो क्या कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा मुझे, n - 5 फैक्टोरियल द होल पार्ट कैंसिल विद दिस, ये इसमें ये जितना भी पार्ट आ रहा है ना, ये पूरा पार्ट आपका इससे कैंसिल हो रहा है। सो इन n - 4 फैक्टोरियल यू विल ओनली गेट हियर n - 4, करेक्ट और नॉट, करेक्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, n - 5 फैक्टोरियल का पूरा पार्ट इसमें से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बस n - 4 ही रहेगा। वाई, बिकॉज n - 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट n - 4 इंटू n - 5 फैक्टोरियल, ओके, ये भी रिजल्ट आपको पता होगा, n फैक्टोरियल इज नथिंग बट n इंटू, व्हाट इज n फैक्टोरियल, n इंटू n - 1 फैक्टोरियल, यही रिजल्ट मैंने यूज किया। तो यहाँ से आपको ये मिल रहा है 1/1/n - 4 इक्वल टू 1/5, आई थिंक ये रहेगा कहीं पे, हाँ, और डू दिस सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट n इज इक्वल टू 9। तो इस कंडीशन से मुझे n की वैल्यू मिलती है, या आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, इतना पार्ट। फिर इसके आगे आपको x = 2 के लिए कैलकुलेट करना था, तो n की वैल्यू है, r की वैल्यू है, p की वैल्यू है, q की वैल्यू है, जस्ट कंप्लीट दैट कैलकुलेशन, ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन था। सो आई थिंक हियर विल स्टॉप। ये सारे सॉल्व MCQs है, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट लिया क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन फिर किसी भी लेक्चर में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था, और ये ऐसा टॉपिक है, अभी आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये टॉपिक ऐसा है ना जिसमें थ्योरी क्वेश्चन लेने के बाद भी आपको MCQs नहीं समझ में आएंगे, बिकॉज MCQs में अप्रोच अलग अलग है, ठीक है। सो ऑलरेडी ये शीट मैंने आपसे शेयर की है, एक बार अच्छे से रीड करो, ओके। स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट मुझे कल नेक्स्ट लेक्चर में बोलो, मैं एक और बार, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मैनुअली सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। टाइम जाता है तो जाने दो, बट आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इन लास्ट lecture we have completed theory examples, and in today's session we have completed all the MCQs, ठीक है। Okay, we'll stop here today.